Hello guys, myself Ram Prasad. So today I am going to teach you about tenses. This is my first class, online class on YouTube. So I hope all of you like my class. If you like, please subscribe my channel. So the most important thing in English, I know that many of the students, most of the students, they have doubts in tenses. So that's why I have taken this topic. 4 questions are there, you can see. Question number 1, what is tense? Question number 2, what are the types of tenses? Question number 3, why tense is so important? Question number 4, how to use tenses? Right. So let us first discuss what is tense. Tense is nothing but a time. You have to understand that. Tense means a time. So the other name of tense is time. In Hindi, it is called काल, right? काल. Tense is time. What are the types of tenses? There are 12 types of tenses. Soft tenses, including soft tenses. Total 3 types of tenses are there. In each tense, you will find 4 soft tenses. So total 4 into 3 equal to 12 tenses. Why tense is so important? Tense is so important because whatever you do in a life, in everything you will find the need or the emergency of tenses. As you know, tense is basically divided into 3 categories. First one here, present tense, then past tense, then the future tense. So after this we will discuss about that in detail. Question number 4, how to use tenses? To use tenses, we have to first know the basic, right? The fundamentals. Now that I am going to discuss them. So this is tense, and this tense is divided into 3 basic types. If I make the tree, okay, the tree diagram like this. Past, present, and future. Past, present, and future. Why I put the past here? Because it is already past, and this is the present, this is the future. So in Hindi, this past is called Atit. Atit Kal or Bhut Kal. Atit or Bhut Kal. Present is called Vartaman Kal. Future is called Bhavishya Kal. So 3 main types of tenses are there. This tense is called time, right? Past, present, and future. All you can say present, past, and future. Total 3. Then each tense has 4 soft tenses. That's most important. 4 soft tenses. So what are the 4 soft tenses? Let us know. The first one is called the soft tenses. We can write here soft tenses. Number 1, number 2, number 3, number 4. First one is called indefinite. Second one is called progressive. Third one is called perfect. And fourth one is called perfect continuous or perfect progressive. You see, all these 4 substances, okay, you can use for these 3 tenses. It means if you find these 4 substances here also you will find these 4 substances are there. Here also these 4 substances are there. So total 12 substances are there, right? And this is very important to understand. In each tense you will find these 4 substances. So total how many tenses are there? 12, right? सो एक दिन में तो ये सब जानना इतना आसान नहीं है,
कुछ चैनल बोलते हैं कि 1 घंटे में 2 महीने का क्लास 1 घंटे में सीख लीजिए, हो सकता है, लेकिन हम लोग डिटेल में जानेंगे सो दैट द फंडामेंटल विल बी क्लियर, द बेसिक थिंग, बेसिक doubt also will be clear. So today I think we should focus on the present tense, only present tense, and it's a sub tenses. With lots of examples, we'll understand the basic thing. First thing is present tense. Verb tense is called the present tense. Present tense. It has 4 sub tenses. First one is called indefinite. Indefinite. Why this is called indefinite? Indefinite. Very easy it is to know. But first of all, we should know why this is called indefinite. Indefinite means not definite. Not definite. And definite means जो निर्दिष्ट नहीं है, एग्जैक्ट टाइम हमको मालूम नहीं है, ठीक है. प्रेजेंट इंडेफिनाइट मीन्स द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट फिक्स्ड, राइट. फॉर एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर है, ईच टेंस हैज अ स्ट्रक्चर, राइट. इंडेफिनाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि द टाइम इज नॉट डेफिनाइट. नॉट डेफिनाइट, व्हिच इज नॉट डेफिनाइट? द टाइम इज नॉट डेफिनाइट. इसको अगर एक बार समझ गया ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. द टाइम इज नॉट डेफिनेट. कैसे? अब एग्जाम्पल के जरिए हम जानेंगे. एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू स्कूल. ये जो सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, इसका मतलब है मैं स्कूल जाता हूं. जाता हूं का मतलब क्या? मैं अभी जा रहा हूं? नहीं, मैं कल गया था, आज भी गया और आगे भी जाऊंगा. लेकिन ये जो सेंटेंस में जब भी बोलता हूँ, whenever I tell this sentence, I go to school, मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरा आदत है. दिस इज माई हैबिट, दिस इज माई रेगुलर एक्टिविटी, दिस इज माई डेली एक्टिविटी. सो कोई भी काम जो डेली करते हो, तुम्हारा आदत है, इसके लिए हम ये जो टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट. टाइम इज नॉट फिक्स्ड, टाइम इज नॉट डेफिनेट, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट. आई गो टू स्कूल, इसके अंदर क्या क्या आता है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर मतलब उसको क्या बोलते हैं? छाप जैसे बोलते हैं स्ट्रक्चर. वो मैथमेटिकल है, वो अगर जान लोगे तो ये वाला बहुत आसान हो जाएगा, राइट. सो लेट अस नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस. दिस इज वेरी मैथमेटिकल, राइट. स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. S प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर. इसको बाय हार्ट करना है, इसको रट के रखना है, ठीक है, नहीं तो नहीं हो. S प्लस V1 प्लस O. यार S का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब है डूयर. डूयर मतलब जो करता है, काम जो करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ कौन काम करता है? आई इज द सब्जेक्ट, ये वाला S सब्जेक्ट. आई इज द डूयर ऑफ द एक्शन. स्कूल कौन जाता है? आई, राइट. ये वाला एस हुआ. अब V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हम लोग जानते हैं कि वर्ब का 5 फॉर्म है, राइट. लेकिन 3 फॉर्म जो है वो ज्यादा यूज होता है. अभी लिखेंगे वर्ब का जो फॉर्म है, अभी लिखेंगे V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है. अभी जो V1 है जैसे गो, वेंट, V2 है, V3 है गॉन, V4 है गोज, V5 है गोइंग, राइट. लेकिन ये जो दोनों यूज होता है, लेकिन इसका ज्यादा यूज होता है, गो, वेंट, गॉन. V1, V2, V3. ये जो V1 है मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वाला यहाँ यूज होता है. V1 सब्जेक्ट प्लस V1, राइट. V1 मीन्स वर्ब 1. नेक्स्ट वन ऑब्जेक्ट, वो मतलब ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ भी आइडेंटिफाई करेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V1, राइट. एंड टू स्कूल जो है ये है ऑब्जेक्ट. मतलब मैं स्कूल में जाता हूँ, आई गो, कहाँ जाता हूँ? टू स्कूल, ठीक है. ऐसे लिखना पड़ेगा. लेकिन इसमें थोड़ा देखेंगे हिंदी में कैसे लिखते हैं. हिंदी में क्या करते हैं?
पहले आता है सब्जेक्ट में, जैसे विद्यालय, विद्यालय जाता हूँ। देखिए ये वाला जो मैं हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, पहले सब्जेक्ट आया, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, फिर जाता हूँ। ये क्या है? जाता हूँ, ये है भार। हिंदी में थोड़ा अलग है। हिंदी में क्या है? सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर भार। लेकिन इंग्लिश में उल्टा, पहले सब्जेक्ट, फिर भार वन, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो अभी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और उसके आंसर ये वाला चीज सीखेंगे, राइट। सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, इसी का आंसर। लेकिन इसमें भी थोड़ा है, वो आसान है कर देंगे। उसको क्या है कि थोड़ा जो पर्सन है, पर्सन के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई गो टू स्कूल हुआ, इस तरह कैसे होगा अभी जानेंगे। दूसरा भी लिख देंगे इधर नीचे, आगे बदले दूसरा लेंगे ताकि वो आसान हो जाएगा। यू कम टू माई स्कूल, दे डांस नाइसली, वी प्ले टुगेदर। क्या हिंदी में नहीं लिखी? यू कम टू माई स्कूल मतलब तुम मेरे स्कूल को आते हो या आती हो। दे डांस नाइसली मतलब वो अच्छा डांस करते हैं, उनका आदत है, वो करते हैं, हम जानते हैं। वी प्ले टुगेदर मतलब हम लोग साथ में खेलते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे। ये जितने भी सेंटेंस अभी बोला, इसमें कहीं पर भी नहीं कहा गया कि उसका टाइम क्या है। टाइम मालूम नहीं है इसमें। आई गो टू स्कूल, मैं कभी नहीं जाता हूँ। ठीक है, पिछले मैं 15 साल से स्कूल जा रहा हूँ, इसका मतलब। ठीक है, परसों गया था, कल गया था, आज भी गया और आगे भी जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब है मैं स्कूल जाता हूँ, ये मेरा आदत है। ठीक है, हो गया। अभी और कुछ सेंटेंस है जो लोग हम जानते हैं, जो फैक्ट है, जो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए जैसे सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो सन है सब्जेक्ट, राइजेस हो गया वर्ब वन, इन द ईस्ट हो गया ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसका मतलब क्या है? सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट। और ये के वाटर बॉयल्स at 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल्स, ये साइंटिफिक ट्रूथ है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ये सब जो सेंटेंस है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ उसके आधार पर है। और बाकी ये जो सेंटेंस बोला, ये सब इसके ऊपर आधारित है, जो हम डेली करते हैं, डेली बेसिस में जो हमारा आदत है। आदत है मतलब हमारा हॉबी है, डेली वर्क्स। इसके लिए इंडेफिनिट यूज होता है, बिकॉज द टाइम इज नॉट फिक्स्ड, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, और जहाँ बच्चे गलत करते हैं मैं देखता हूँ। ये देखिए, दिस सन राइजेस हो गया, इधर एस क्यों लगा? व्हाई एस इज देयर हियर? इसका डाउट मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ओके, व्हाई एस इज देयर हियर, राइट। और किन किन जगह में एस लगेगा उसका अभी डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ क्यों नहीं लगा? ये तो आई है, यहाँ क्यों नहीं लगा एस? गो में यू कम, यहाँ क्यों नहीं लगा? दे डांस, यहाँ क्यों नहीं लगा एस? वी प्ले, यहाँ एस क्यों नहीं लगा? लेकिन यहाँ क्यों लगा? और कौन कौन की जगह में ये लगता है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। चलिए,
अभी दूसरे क्लास में हम डिटेल में जानेंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को जताना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ ये सब चीज़ होता है। देखो पहले अभी थोड़ा डाइवर्ट होंगे हम वहाँ जो टेंस है, क्योंकि ये वाला जानना बहुत जरूरी है। पर्सन, ये पर्सन कितने तरह का है? ये पर्सन इज ऑफ 3 टाइप, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है उसका भी 2 तरह है, एक है सिंगुलर एस, एक है प्लूरल। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल। फिर एस का मतलब मैं लिख रहा हूँ, एस मतलब सिंगुलर है, ठीक है, और पी मतलब प्लूरल। तो सिंगुलर में कौन कौन आते हैं? आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, प्लूरल है वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर जो प्लूरल वही है, यू, यू। थर्ड पर्सन में बहुत सारे हैं, जैसे कि सिंगुलर में है ही, सी, इट, ठीक है, दिस दैट भी लिख सकते हो, दिस दैट जोड़ सकते हो। प्लूरल में आ गया दे, और सिंगुलर में और सारा है, जैसे जो नेम है, ये तो प्रोनाउन है, नेम है क्या है अभी जो आया था, जैसे कि राम, गीता, the boy, the student, ये वाला हो गया सिंगुलर। ये वाला प्लूरल हो गया दे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स। और एक है जैसे कि हम जोड़ेंगे, जैसे आई एंड यू, आई एंड यू, दोनों 2 हो गए ना, तो प्लूरल हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया, आई एंड यू, आई एंड यू, ही एंड दे, ये वाला थर्ड पर्सन प्लूरल। देखिए बहुत आसान है, द थिंग इज यू हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन इट। देखिए ये जितने भी है पर्सन, 3 प्रकार का है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल तो है, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग है, जैसे आई का है मी, माई, माइन, और एक क्लास में समझाएंगे। थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है, सिर्फ 7% सिंगुलर में हमारा जो एस, ईएस और आईएस लगेगा। ये वाला कहीं पर भी आपने आप लोगों ने सुना नहीं होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, ये है थर्ड पर्सन, देखा ना, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब में एस, ईएस और आईएस लगेगा। एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल में एस कहाँ लगेगा? ही ईट्स, ये देखो एस लगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, फिर भी ही ईट्स, एस लग गया ईट में, ये तो गलत हो जाएगा, वो खाता है। सी ईट्स भी कर सकते हो, ठीक है, सी ईट्स, इस तरह बहुत सेंटेंस है। अच्छा अभी ईएस लगाएंगे, दूसरा एक लेंगे, राम गोज, यहाँ पर ईएस लगा वर्ब, ठीक है, राम गोज, हरी गोज, द बॉय गोज, ठीक है। अभी देखो ये ईएस हो गया, अभी आईएस भी लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जैसे कि ही कैरेज, ही कैरेज हिज बैग, कैरेज मतलब वो उठा कर लेता है, ही कैरेज हिज बैग ऑन हिज शोल्डर, ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर, राइट, ही कैरेज, राइट, कैरेज हो गया, आईएस हो गया। सो हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि जो एस लगता है वर्ब में आड़ होता है, एस हो, ईएस हो, आईएस, सब में एस है, एस एस एस। ये जो एस लगता है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है, और किसी में भी नहीं लगता है, और दैट टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाला एस लगता है, और कहीं पर भी लगता है, राइट। So the use of s, es and is is only in third person singular noun or pronoun. That you have to remember. Nowhere else. अब ये वाला करके देखो, जैसे कि I eat होगा,
इट्स नहीं होगा, मैं खाता हूँ, आई ईट। प्लूरल में वी ईट, हम लोग खाते हैं। सेकंड पर्सन देखो ई में, तुम खाते हो, यू ईट, या आप खाते हो, यू ईट, आप लोग खाते हो, यू ईट, इट्स नहीं होगा। थर्ड पर्सन प्लूरल को लेंगे, जैसे कि दे, वे, या वो लोग, वे, दे ईट। सिमिलरली आई एंड यू ईट, ही एंड दे ईट, स्टूडेंट्स ईट, टीचर्स ईट, डॉक्टर्स ईट, सबके लिए ये वाला यूज होगा। लेकिन सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस आना होगा, एस, एस और आई एस। ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा गलतियां करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये इस जो पर्सन के बारे में विद मोर एग्जांपल्स विल डिस्कस इन सम अदर डे, राइट। सो टुडे लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर टेंस। क्लास लंबा हो रहा है, ये मेरा पहला क्लास था, पता नहीं आप लोग कैसे इसको लेंगे, फिर भी मैं सोच रहा हूँ यहाँ स्टॉप कर देना अच्छा है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे। अगर मतलब जो सेकंड पार्ट में जिसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। सब तब तक के लिए खुश रहिए। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आया, थोड़ा सब्सक्राइब करना ताकि मुझे मोटिवेट मिले जैसे और अच्छा क्लास लेने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।